آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز خاص خبروں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور شیئر کریں۔ عالی جناب حافظ نذیر صاحب اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ بڑا ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے شہر سلوڑ میں جناب انیس احمد دیشمکھ صاحب کے فرزند ڈاکٹر ریحان دیشمکھ نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ ہماری شہر سلوڑ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، اور یہ ہمارے ہندوستان کے صف اول میں ان کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ جمعیت علماء ہند شاخ سلوڑ کی جانب سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے والد صاحب کو بھی اور ڈاکٹر ریحان صاحب کو بھی، اور ان کی تمام برادری کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ بہت بڑا مبارک موقع ان کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے اور ان کی راہ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور یہ ترقی کے راہوں پر گامزن رہے۔ جب بھی کوئی قوم ترقی کے لیے اپنے آپ کو جد و جہد کے لیے تیار کرتی ہے تو اس کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہے، لیکن ہم جو ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بس اب ہم کو یہیں تک پڑھنا ہے، اس کے بعد کہاں نوکریاں لگ رہی، کہاں ایسا ہو رہا، کام ایسا ہو رہا، اور علم کے میدان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو چین جانا پڑے تو بھی گریز مت کرو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی مشکلات درپیش، جتنی بھی مشکلات حائل ہو جائے تو ان سب کا مقابلہ ڈٹ کر کرو اور علم حاصل کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی ایسے آئے تھے کہ جو تعلیمی یافتہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ایک ایک فرد کو جو ہے، ایک ایک صحابی کو جو ہے علم سے روشناس فرماؤ اور تم قید سے جو ہے آزاد ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا مشن ہے علم کا۔ اور سب سے پہلی جو آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی تو وہ پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے ہی نازل ہوئی، اور اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس فیلڈ سے بہت غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج ہم دنیا کی صفوں میں سب سے نچلی صف کے اندر ہے، اس لیے ہم کو آج ہم یہ ڈاکٹر ریحان صاحب کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر سلوڑ کے نوجوان اور تعلیمی یافتہ بچوں کے لیے بھی یہ حوصلہ افزائی کا موقع ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی جو ہے تو ایک راستہ کھل رہا ہے کہ جیسے انیس احمد دیشمکھ صاحب نے اپنے فرزند کے لیے انتھک کوششیں اور محنتیں کی، تب جا کے یہ مرحلہ ان کے سامنے آیا مبارکباد کا اور استقبال کا۔ تو ایسے ہی والدین جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ان کو دلچسپی اور لگاؤ پیدا کرنے کے لیے ایسا ماحول بنائے، ایسے اساتذہ سے ان کا جو ہے تو کانٹیکٹ کرائے، ان سے رہنمائی حاصل کرے، تاکہ ہمارے شہر کے بچے جو ہے، طالب علم جو ہے ترقی کر سکے، جیسا کہ ڈاکٹر ریحان صاحب نے جو ہے ترقی کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر سلوڑ اور تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کو جو ہے علم سے روشناس فرمائے اور ترقی کی راہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ پھر ہم جو ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ڈاکٹر ریحان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں
और उनके वालिद को भी जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हाफिज नज़ीर साहब, सदर जमीयतुल उलमा हिंद सिल्लोड। अब मैं बिला ताखीर आज के साहिब एजाज़ सत्कार मुर्ती डॉक्टर रेहान अहमद देशमुख साहब के हुजूर पहुँचता हूँ कि आज का दौर तो ये है हाज़रीन कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब डॉक्टर रेहान अहमद देशमुख साहब अपने तजर्बात और उनके तालीमी सफ़र पर आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये साथियों, मैं जमीयतुल उलमा हिंद शाख सिल्लोड का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने ये फेलिसिटेशन किया, ये मोहब्बत बख्शी। उसके बाद मैं अपने वालिद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बचपन से जो है मुझ पर मेहनत की, और शायद आज की कामयाबी में एक बड़ा हिस्सा जो है मेरे वालिद का है। कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ आई हैं। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है सोफ़ा, जो हम हमारे लिविंग रूम में रखते हैं और उस पर जो आराम से बैठते हैं। ये असल में एक अरबी लफ्ज़ से आया है, जिसे कहते हैं सुफ़ा। सुफ़ा क्या चीज़ है? ये दुनिया का सबसे पहला महज़ब जो है मदरसा स्कूल था, और यहाँ से जो लोग पढ़कर निकले उन्होंने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई। उन्हें हम असहाबे सुफ़ा कहते हैं। और दुनिया के पहले महज़ब तरीके से तालीम को आगे बढ़ाने वाले वो हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो सुफ़ा का जो पैगाम है, वो पैगाम को आज रिवाइव करना है, उसे उसकी बाजियाब करनी है हमें, ताकि वो पैगाम हमारे हर मुसलमान घर के अंदर जाए, उनके नौजवानों में जाए, और वो तालीम के बारे में जो है हसास बने। ये हर वालिदैन के दिल में ये दस्तक दे कि सुफ़ा का जो पैगाम अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले दिया था, वो आज भी हमारी ज़िंदगी में जो है वो रिवाइव हो, की बाजियाब हो, तब जाकर इंशाअल्लाह कौम के अंदर जो है तब्दीली आएगी। असल में तालीम का जो मकसद है वो सिर्फ डिग्री हासिल करना या तालीम के ज़रिए दौलत कमा लेना नहीं है, बल्कि तालीम का असल मकसद अच्छा इंसान बनना है। सिर्फ आज हमारी मुस्लिम कौम को सिर्फ अच्छे नौजवान, एजुकेटेड नौजवानों की या यूथ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एजुकेटेड यूथ प्लस अच्छे अखलाक। ये आज दुनिया में इसकी कमी है। आज दुनिया में आप चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए या एकेडमिक्स में जाए, आप किसी भी जगह चले जाइए, एजुकेटेड यूथ आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन दुनिया जो चीज़ मांगती है वो अच्छे अखलाक मांगती है। ये दोनों चीज़ें अगर एक नौजवान में मौजूद हैं, उसे दुनिया में कोई जो है पीछे नहीं कर सकता, उसे दुनिया में हर जगह जो है तरक्की मिलेगी। तो आज हमें ज़रूरत है एक्सेलेंस, एजुकेशनल एक्सेलेंस अलॉन्ग विथ गुड मॉरल्स, गुड वैल्यूज, अच्छे अखलाक। ये वो दौलत है जिसे हमें हासिल करना है और हमारे बच्चों में जो परवान चढ़ानी है। ये असल मकसद है तालीम का। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे घर में जो औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, उनके एजुकेशन पे खास ख्याल कीजिए। मर्दों पर तो ध्यान देना है, औरतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमने हमारी बच्चियों को, लड़कियों को मॉडर्न एजुकेशन प्लस अच्छे अखलाक वाला बनाया, हमारी कौम की 50% इलिटरेसी जो है वो खत्म हो जाएगी। औरतें बच्चों को लेकर बैठेगी घर के अंदर पढ़ाई के लिए, क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा सिंसियर होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, वो यूनि डायरेक्शनल नहीं चलती। हमें जो है इस चीज़ पर जो है हमारी जमातों को और
तंजीमों को जो है इस पे जो है बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे कही। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत उलमा हिंद शाख सिल्लोड का कि उन्होंने ये इज्जत बख्शी, उन्हें मोहब्बतों का इजहार किया। जज़ाकल्लाह खैर। तालीम पर गुफ्तगू फरमा रहे थे साहिब एजाज डॉक्टर रिहान देशमुख। हाजी पाशु साहब यहाँ तशरीफ फरमाए और बहुत ही सिल्लोड़ के अकादरीन यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने औरतों की तालीम पर ज़्यादा फोकस देनी। मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, मैं इलेक्शन ड्यूटी करके आ रहा हूँ। मेरे पास 550 वोटर्स वोट डालने के लिए आए, जिसमें तकरीबन 250 मुस्लिम औरतें थीं। और बड़े अफसोस के साथ मैं बता रहा हूँ कि उसमें से 75 औरतों ने, मैं नोट करके जा रहा था, 75 औरतों ने अंगूठा लगाया वो वोटर रजिस्टर में। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है। बहरहाल मोटा मोटा इतना है। एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, उनसे सवालत करते हैं, सूरह बकर सुनाओ, सूरह यासीन सुनाओ, फिर कोई अधूरी आयत पढ़कर उसको मुकम्मल करने के लिए कहते हैं। यानी ये चेक करना होता है कि वाकई उसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। तो इतनी थीसिस करने के बाद एक एक पॉइंट्स को सर्च करना यानी क्या है, तलाश करना, ढूंढना, निकालना। बहुत सारे लोग इजाद बोलते हैं, नई चीज कोई इजाद नहीं करता, नई चीज इजाद नहीं करता। अल्लाह ताला का खजाना ऐसा है जिसमें हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हर फलसफा मौजूद है, सब चीजें मौजूद है। लेकिन क्योंकि उसने इंसान को अशरफ बनाया है, आला बनाया है, तो उस ऐसी चीज, वो जो खजाना है, कुदरती खजाना, उसमें से कोई एक चीज को ढूंढकर उसमें क्या क्या चीजें नहीं और वो इंसानी जिंदगी के लिए किस तरह से काम में आ सकती है, ये मंजर आम पर लाना यानी रिसर्च करना। अब इतना रिसर्च करने के बाद और अपने एक एक नुकात को साबित करने के लिए वो स्कॉलर को कितनी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, वो डॉक्टर रेहान से पूछिए। एक पॉइंट के एक्सप्लेन करने के लिए कई किताबें पढ़ना पड़ती है एक पॉइंट के लिए। और ये कोर्स कुछ ऐसा कोर्स नहीं है अपने जैसा मैट्रिक का, बीए का, फिर 5-6 किताबें हैं, 5-6 किताबें में भी 15-15 सबक है और उसी पर सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। अपने एक इतने थीसिस को, इतने बड़े किताब मुकम्मल करने के बाद फिर जैसे हाफिज कुरान का इम्तिहान आवाम के सामने होता है, वैसे पूरे स्कॉलर्स बैठे रहते हैं और फिर उस पर उसके सवाल जवाब पूछे जाते हैं। ये मरहला पूरा करने के बाद तब उसको जाकर जो है तो पीएचडी मिलती है, यानी वो डॉक्टर कहलाता है। इतने मशहूर। और यही काम हम आपको करना है कि इतने मरहलों से गुजरने के बाद भी आपका स्टेमिना बाकी रहना चाहिए, आपके सरपंचों का साथ होना चाहिए और तमाम चीजें जितनी मेहनत हो तो करना चाहिए। और देखिए, इससे पहले के कौम में भी जब सरकारी जबान उर्दू और फारसी हुआ करती थी, यानी जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त दूसरी कौमों ने हमारी तरह उनके मीडियम के स्कूल की कभी डिमांड नहीं की। उर्दू का जमाना, फारसी का जमाना, लेकिन दूसरी कौमों ने ये नहीं बोले कि हमको मराठी के स्कूल दो, हमको संस्कृत के स्कूल दो, हमको। उन्होंने उसी जबान में कंपटीशन करके तुम्हारे साथ आला ओहदों पर फाइज रहे। ये हमको इस बात से करना है। और ये जो प्रोग्राम हम मुनक्कद करते हैं वो इसके लिए नहीं कि उसका एजाज बढ़ जाए, जिसने पीएचडी किया है उसका एजाज तो खुद ब खुद बढ़ ही गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसको डॉक्टर तस्लीम कर ली, अब इससे बड़ा एजाज क्या चाहिए। लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए करना पड़ता है ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। जो सरपरस्त है जो उसको सब ये अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। और इन सब को देखते हो सकता है कि किसी के दिल में ये वसवसा जागे कि मैं भी इस तरह का वो करूं,
इसलिए ये इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करना पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर रेहान को ये चमक उनके आखिर तक बाकी रहे, सिर्फ सिल्लोड शहर नहीं ये बल्कि ताल्लुका भी नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस हीरे की चमक जाती रहे। अल्लाह ताला से दुआ है और आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बुजुर्ग मिर्ज़ा अब्दुल कदीर बेग साहब। मैं बिल्कुल मोटा मोटा पीसना चाहूँगा, लेकिन दो बातों का आपने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि हिंदुस्तान में काबिलियत को, हमारी जो एबिलिटी है उसको तासुब नहीं है। उसकी अभी माजी करीब ताज़ी मिसाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल का जश्न मनाया गया, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे खिताब किया, ऑनलाइन खिताब किया, वर्चुअल, और वहाँ उन्होंने एक स्टूडेंट से बात की, शादाब अहमद खान से। वो शादाब अहमद खान अमेरिका में डॉक्टर रेहान अहमद साहब जैसे ही फेलोशिप लेकर वहाँ कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट उन्होंने, हमारे वजीर आजम साहब ने शादाब से पूछा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो शादाब का बहुत खूबसूरत जवाब था कि ये प्रेरणा मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन और एपीजे अब्दुल कलाम से मिली। मैं देश के लिए एपीजे कलाम बनना चाहता हूँ। तो तासुब नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर उस शादाब अहमद खान को मुबारकबाद देते हुए सल्यूट करता है कि मुझे शादाब तुम पर गर्व है, फख्र है। तो हम ये तासुब का रोना धोना छोड़ दें, और आज का ज़माना तलवार का ज़माना नहीं है। आज का ज़माना एजुकेशन का ज़माना है, कलम का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का हथियार जिसके पास है, आज सब कुछ उसके पास है। आप देख ही रहे हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चांद साहब हैं यहाँ पर, चांद भाई देशमुख गुलाम हुसैन दास। ये सहाफ़त तो दुनिया थी एक तरफ और कलम एक तरफ, मैंने बढ़ा के हाथ कलम को उठा लिया। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारनामे दिए गए वो तालीम की बुनियाद पर दिए गए। अलीगढ़ के बानी सर सैयद अहमद खान का भी यही आपका सुनहरा कौल है कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस हो। तो उसी मिशन को माशाल्लाह जमीयत उलमाए हिंद, ये पूरे हिंदुस्तान भर में उनकी ये कोशिश है कि ऐसे हीरे जो कौम व मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी काविशों को दुनिया के सामने लाया जाए। और उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जो यहाँ पर ये बज़्म सजी है। अब मैं जनाब शेख इसहाक अहमद, प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तकरीब के सदर और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमा इकराम, जामा मस्जिद कमेटी के सदर अलहाज शेख पाशु साहब, और यहाँ पर अमादनी शहर मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जो मौजूद है वो मिर्ज़ा अब्दुल कदीर बेग साहब और साजिद देशमुख साहब के इनके इब्तिदाई कलमात और आपके अल्फाज से समझ में आ चुका है कि डॉक्टर रेहान अहमद देशमुख इनके एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिद मोहतरम हाजी अनिल देशमुख साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। और चंद ही बातें पहले कह दिया गया कि मुख्तसरन, इसलिए ये एक मिसाल है सिल्लोड के लिए और उन नौजवानों के लिए जो तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक मिसाल है। इनको देखते हैं, इनकी पैरवी करते हैं हम लोग जो है तो आगे बढ़ सकते हैं। बेग साहब ने कहा है कि ईंट पत्थरों का ज़माना नहीं है, ताजमहल वगैरह कुछ काम के नहीं रहे। मुसलमानों को तालीम मैदान में आगे बढ़ना चाहिए और हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही जो है तो हमारा नाम रोशन होगा। मैं यहाँ पर मैं खुशकिस्मती भी समझता हूँ कि डॉक्टर रेहान अहमद देशमुख, मौलाना मोहम्मद अली जौहर
اردو اسکول کی ابتدائی تعلیم کی وہیں سے بھی اس کے طالب علم ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے، اور سلوڑ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں سلوڑ سے یہ پہلے پی ایچ ڈی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ میں تمام ان کے برادران کو بھی اور تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جناب اسحاق صاحب، یہ نئی بات آپ نے بتائی کہ یہ پورے شہر سلوڑ سے پہلے پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، یہ تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے شہر کے لیے، اور آپ کو بھی بہت مبارکباد کہ آپ کے دستے شفقت کے نیچے سے یہ بچہ آج ہیرے کی طرح چمک رہا ہے۔ استقبال کا سلسلہ یہاں پر شروع کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ قدیر صاحب نے کہا کہ ریسرچ کرنے کے لیے بہت کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، بہت دماغ لڑانا پڑتا ہے۔ اے پی جے کلام کا نکاح طے ہو گیا، ڈاکٹر اے پی جے کلام کا، اور انہوں نے حامی بھی بھر لی شادی کے لیے۔ آپ کی شادی ہو گئی الحمدللہ، اور وہ اپنے کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے لیب میں اتنے مصروف ہو گئے اے پی جے کلام صاحب کہ عین شادی سے ایک دن پہلے تک ان کو یاد نہیں رہا کہ کل میرا عقد ہے، کل میرا نکاح ہے، اور تاریخ گزر گئی، اور اس کے بعد انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اب میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بڑا اتنا مشکل کام ہے۔ بہرحال اب میں جمعیت علماء ہند شاخ سلوڑ، جو اس بزم کے جن کی زیر سرپرستی یہ بزم آج سجی ہے، ان کے ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے ستکار مورتی، آج کے صاحب اعزاز ڈاکٹر ریحان احمد انیس احمد دیشمکھ صاحب کا استقبال کریں۔ اظہار تشکر کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ بزم، آج کی یہ محفل جو ڈاکٹر ریحان احمد دیشمکھ صاحب کے اعزاز میں جمعیت علماء ہند نے یہاں پر بڑی کامیابی سے سجائی، اور آپ تمام حضرات سلوڑ شہر کے تمام ہی علم دوست حضرات، بزرگ اور نوجوان ساتھی جو اس محفل کا حصہ بنے، میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں سب کا، لیکن جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تو یہاں آنے والا ہر شخص اس خوبصورت بزم میں قابل عزت و احترام ہے، تو میں سبھی کا اجتماعی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ کا حقدار جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے جمعیت علماء ہند ان کے تمام ساتھیوں کو یہ ہدایت دی، یہ طاقت، یہ قوت و صلاحیت عطا کی، اور تمام دیشمکھ برادران، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جناب ریحان احمد دیشمکھ صاحب کہ اللہ آپ کو اور مزید ترقیوں سے نوازے، اور یہ قافلہ چلتا رہے، اور ایسی محفلوں کا میں حصہ بنتا رہوں، مجھے یہ سعادت ملتی رہے۔ ان 4 مصروں سے آج کے بزم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ ستاروں کو آنکھوں میں محفوظ کر لو، ستاروں کو آنکھوں میں محفوظ کر لو، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہے تم بھی، مسافر ہوں میں بھی، نہ جانے کسی موڑ پہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔